Electromagnetic induction. This phenomena was discovered by Michael Faraday around 1830 AD. माइकल फैराडे ने अपने इस एक्सपेरिमेंट में एक इंसुलेटेड कॉपर वायर की कॉइल बनाई और उस कॉइल के एंड्स को एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया, और जब वो इस कॉइल के पास एक बार मैग्नेट को, स्ट्रांग बार मैग्नेट को बहुत तेज़ी से इसके पास लाए, वेरी क्विकली, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता है. Now when he take away this bar magnet from this coil, then also there is deflection, but direction of deflection is opposite. If south pole is brings towards this coil, then also direction of deflection is opposite. माइकल फैराडे ने यह एक्सपेरिमेंट ये सोचकर परफॉर्म किया कि अगर करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है तो मैग्नेटिक फील्ड को करंट प्रोड्यूस करना चाहिए, और इसमें उनको सफलता मिली. दिस इज़ ए सोलेनाइड. इसे इंसुलेटेड कॉपर वायर से वाइंडिंग करके बनाया गया है, और ये एक गैल्वेनोमीटर है. इस सोलेनाइड्स के एंड्स को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया गया है. अब जब हम एक स्मॉल बार मैग्नेट को इस सोलेनाइड के अंदर रख के क्विकली इसको तेज़ी से इससे दूर ले जाते हैं, तो देखें इसमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता है. और अगर हम इसकी पोलैरिटी चेंज कर देते हैं, ऑब्जर्व द डिफ्लेक्शन इन दैट केस, so it is clear that direction of deflection changes. So whenever there is relative motion between a magnet and a coil, an induced EMF is produced in the coil, and this induced EMF is the cause of induced current. This phenomena is known as electromagnetic induction. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में और समझने से पहले मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में जानते हैं. व्हाट इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स? सपोज हेयर इज़ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल B, एंड यू होल्ड एन एरिया A सो दैट दिस एरिया मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. जो एरिया है, एरिया की डायरेक्शन एरिया के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है. So scalar product of this magnetic field B and area vector A is known as magnetic flux. So this phi is equal to B dot A, which is equal to BA cos theta. ये देखें मैग्नेटिक फील्ड है, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो इस एरो से दिखाई गई है ये प्लेन के परपेंडिकुलर होती है. इसको हमने ऐसे रखा. इन दैट केस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, सो फाई इज इक्वल टू BA. Now if you rotate this plane like this, keep it like this, then angle between B and A is theta. When plane is parallel to magnetic field, then theta is equal to 90 degree. क्यों? क्योंकि जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है वो प्लेन के परपेंडिकुलर ले जाती है. वी टेक द डायरेक्शन ऑफ एरिया परपेंडिकुलर टू द प्लेन. इस मैग्नेटिक फ्लक्स चैप्टर में आपको ऐसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मिलेंगे जिसमें एक कॉइल है, कॉइल को फील्ड के परपेंडिकुलर रखे हैं, फील्ड के पैरेलल रखे हैं, तो उससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है, फ्लक्स चेंज क्या होगा कॉइल को रोटेट करने में. तो यहाँ जो है ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, स्क्वायर कॉइल है एक राउंड की, और इसका ओरिएंटेशन चेंज होने से क्या होगा, इससे पास होने वाला फ्लक्स भी चेंज होगा. So if theta is equal to 0 degree, flux will be maximum B into A. If theta is equal to 90 degree, flux will be 0. Now this magnetic flux is scalar quantity. Magnetic field B is vector, area A is vector, but flux is scalar quantity.
and its unit is Tesla meter square. This is also written as Weber. Now just think, when you bring this magnet towards this coil, what is changing? One thing is distance between the coil and magnet. Number of turns for a given coil are constant. There is no cell, but current flows. So think what is changing. One thing is magnetic field. With distance, magnetic field strength is also changing. We know that near a bar magnet on its axial position, magnetic field at this point B is equal to mu naught upon 4 pi into 2m upon r cube, where this capital M is magnetic moment of this bar magnet, r is distance, B is magnetic field, and mu naught is permeability of free space or air. Now look at this area. Flux passing through this phi 1 is equal to B1 into A, because magnetic field here is B1, area is constant. Now when bar magnet is near to this area, then flux phi 2 will be equal to B2 into A. Now this is clear that flux phi 2 is more than flux phi 1. So when we bring this magnet towards the coil, then distance is decreasing and magnetic field is increasing, and therefore magnetic flux is also changing. अभी हमने मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या समझी थी? टेस्ला मीटर स्क्वायर और वेबर. तो जब ये कॉइल से दूर है मैग्नेट तो फ्लक्स phi 1 है, और जब कॉइल के पास मैग्नेट है तो फ्लक्स phi 2 है. सो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डेल्टा phi इज इक्वल टू phi 2 माइनस phi 1. सपोज टाइम to bring this magnet from this position to this position is delta t. Time interval is delta t. At time t1 magnet is here, so at time t1 flux is phi 1, and at time t2 flux is phi 2. So change in flux delta phi is equal to phi 2 minus phi 1, and time interval is delta t. Now unit of this delta phi is Weber or Tesla meter square. Faraday's law of electromagnetic induction. The magnitude of the induced EMF in a circuit or a coil is equal to the time rate of change of magnetic flux through the circuit or coil. जो induced EMF प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है डेल्टा टी टाइम इंटरवल में. सो यू डिवाइड दिस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी. दिस इज rate of change of magnetic flux with time, and this is equal to induced EMF. डेल्टा फाई की यूनिट वेबर है, डेल्टा टी की यूनिट सेकेंड है, सो वेबर पर सेकेंड शुड कम इक्वल टू यूनिट ऑफ दिस EMF वोल्ट. तो इसको आप डायमेंशनली अगर यूनिट कन्वर्ट करेंगे देन यू विल फाइंड दैट वेबर पर सेकेंड इज इक्वल टू वोल्ट. नाउ इफ डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल देन we may write E is equal to minus d phi by dt. So this is in differential form. This is average EMF and this is instantaneous EMF. If number of turns in the coil are capital N, then E is equal to minus n delta phi upon delta t, or E is equal to minus n d phi by dt or ddt of phi, means E is differential coefficient of phi with respect to time. So this is written in differential calculus form. This is when delta t is very very small. अब जो इंड्यूस्ड EMF है उसकी डायरेक्शन हम लेंज ला से फाइंड आउट करते हैं. दिस लॉ स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करेंट or EMF produced in a circuit or closed coil is such that it opposes the cause which produces it. जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रही है उसकी डायरेक्शन ऐसे होती है कि उस काज को अपोज करती है जिससे ये प्रोड्यूस हो रही है. लेंज वाज ए जर्मन फिजिसिस्ट एंड ही इंट्रोड्यूस्ड दिस लॉ ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. So when we bring this
bar magnet towards this coil and north pole is towards the coil। तो इसमें जो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगी उससे इसमें जो ये करंट लूप फार्म होगा, वी नो दैट ए करंट लूप आल्सो बिहेव्स एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। तो ये करंट की डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए कि ये नॉर्थ पोल बने। ये नॉर्थ पोल तभी पॉसिबल जब इसमें करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। तो जब नॉर्थ पोल इसके पास ला रहे हैं कॉइल के तो करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी, और नॉर्थ पोल को जब दूर ले जा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी, जिससे साउथ पोल बने। सी इन दिस डायग्राम इन दिस सोलेनॉइड, जब साउथ पोल मैग्नेट का इसकी ओर आ रहा है तो करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी। इन दैट केस ओनली दिस एंड बिकम्स ऑफ दिस सोलेनॉइड साउथ पोल ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट। और ये इस करंट की डायरेक्शन वाइंडिंग किस तरह से की गई है इस पर भी डिपेंड करती है। जैसे हमने सोलेनॉइड बनाई और ऐसे ऐसे वाइंडिंग कर रहे हैं, सोलेनॉइड बनाई और वाइंडिंग ऐसे ऐसे है, तो इस केस में जो करंट की डायरेक्शन है एक्स से वाई की ओर है। एंड इन दिस केस डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम वाई टू एक्स, क्योंकि जब साउथ पोल को लाएंगे वाइंडिंग की डायरेक्शन डिफरेंट है, तो ये साउथ पोल बनने के लिए करंट तो क्लॉकवाइज ही फ्लो होगी इसमें, लेकिन वाइंडिंग की डायरेक्शन चेंज होने से इसकी डायरेक्शन करंट की वाई टू एक्स है। सो वी कंक्लूड दैट वेन एवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड। अब ये देखें, एक ये करंट कैरिंग वायर है, स्ट्रेट वायर है। व्हेन आई करंट फ्लोज थ्रू इट देन मैग्नेटिक फील्ड बी विल बी प्रोड्यूस्ड and direction of magnetic field towards this side of this wire. At the right hand side of this wire will be perpendicular to the plane of the paper and inward by the right hand thumb rule. Stretch the thumb in the direction of current, then curling of finger will give you the direction of magnetic field. So magnetic field here is perpendicular to the plane of the paper and inward. इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर होगी और आउटवर्ड होगी। अब अगर यहाँ पर हम एक कंडक्टिंग वायर का सर्कुलर लूप रख देते हैं, कॉइल रख देते हैं, और इस वायर में करंट इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगी। वाई? क्योंकि करंट इंक्रीज होने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो फ्लक्स भी चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होगी। नाउ व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ दैट इंड्यूस्ड करंट? तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर इनवर्ड है, तो इसमें करंट ऐसे फ्लो होगी कि इससे जो मैग्नेटिक फील्ड फार्म हो, क्योंकि करंट लूप भी मैग्नेटिक फील्ड फार्म करता है, तो उसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट आनी चाहिए। तो जब ये नॉर्थ पोल बनेगा, करंट की डायरेक्शन इधर से देखने में एंटी क्लॉकवाइज है, इन दैट केस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी perpendicular to plane and upward. So in this way this is opposing the cause which is producing it. Similarly if current starts to decrease, तो अब ये करंट के डिक्रीज होने को अपोज करेगा, तो इसमें करंट की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज एंड दिस इज क्लॉकवाइज, तो ये साउथ पोल बनेगा। इस समय अभी इसके मैग्नेटिक फील्ड के रिड्यूस होने को अपोज कर रहा है, तो कैसे कर सकता है? जब ये उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे। सो मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड इनवर्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड EMF. थैंक्स, हैव ए नाइस डे।